वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरा कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। शहबाज शरीफ का बंदरगाहों पर स्कैनिंग की जदीद मशीनरी नस्ब करने का हुक्म। बंदरगाहों की इस्तादाद से फ़ायदा उठाने के लिए इक़दामात करने की हिदायत। वज़ीर आज़म बोले, बंदरगाहों के ज़रिए तिजारत से पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर का ज़र मुबादला भी कमा सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत KPT हेड ऑफिस में इजलास। शहबाज शरीफ का कहना था कि कराची पोर्ट तक रेल से तरसील की सलाहियत बढ़ाई जाएगी। लियारी एक्सप्रेस वे का कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे तक खुला रखा जाएगा। मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म की KPT और मुतल्लिका हुकाम को इस्लाहात लाने की हिदायत। निजी शोबे की तरक्की सरमायाकारों को सहूलियात अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने साउथ एशियन टर्मिनल के जदीद ऑपरेशंस को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा है। वज़ीर आज़म को टर्मिनल के ऑपरेशंस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि पोर्ट टर्मिनल पर जदीद टेक्नोलॉजी और स्कैनर्स नस्ब किए गए। अहम ये दौरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ Handle is the biggest vessel in the world at the moment. The model of this vessel is a 24,000 TEU plus a vessel. It means the one vessel can carry 24,000 containers at once. So also size of our crane is also biggest crane in the world. So also this terminal is also different with other terminals in Pakistan. We are semi-automated terminal. So at the conventional terminal, all the cranes are operated by operator at the crane. But for us, operator is not working there, operator working, sitting over there, and then they are operating. So yeah, also at our yards, so we can stack 65,000 containers. This is all container. Yes, it's 100% our container. So we can stack in 65,000 boxes at the same time. Also, we have our own powerhouse with around 38 megawatt generation of the power by ourselves. So also we have around this white container is a refrigerated container for the import-export of food. So we have around capacity 2,000 pound container we can stack at the same time. So that is fine. And how many containers you handle every year? So last year we handled 1 million TEU, and this year we are supposed to handle around 1.4 million TEU, maybe around 40% increasing. And this is semi-automatic. Yeah, semi-automatic technology we are using. Also, we have the two types of the RTC. So actually, there are two kinds of the crane, the kick crane, and then also you can see the blue color. Yeah. This is the yard crane. Yeah. We have the two types of yard crane. One is a hybrid crane, but this one still operator working at the crane. For 50% of our crane, also the semi-automatic container at the crane. So operators are not working there. Also operators are working the inside of office, and then one operator can handle 3 equipment at the same time. Okay. Yeah. And I want to know if in a particular container, for the purpose of customs, if you want to look into what is in that container, do you have scanners or cameras? How do you find out, or you have to open it out? Yeah, so this is the examination. So the container in and out. Yes. So we are receiving the list of the examination automatically from the custom through the system. Yes. So then we have to ground the container. You can see this examination area inside the fence. This is export examination area. We have the scanner facility. So that means that container, the scanner would tell roughly the type of item, but it doesn't say with certainty. It can't say. That this is the item. It's not like an airport scanner. That's a small scanner. So, but these ones are set because it's a metal box and inside it there. So we have some. यहाँ पर इस पोर्ट पे तो स्कैनर्स इनके अपने हैं, तो पर आप जो स्कैनर्स आपने मंगवाए हैं आगे लगवा दें 6,000 ये तो वो जो अभी हमने ये जो लगाएंगे ये तो फिर पूरी डिटेल ये तो उसमें जो ए आएगा वो बताइए शारे फैसल पर बिल्डिंग्स की ब्यूटिफिकेशन का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। DGSPCA की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले
عبدالرشید سولنگی بولے SPCA FTC پل سے ایئرپورٹ تک عمارتوں کی بیرونی تزئین و آرائش کرے گی. عمارتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے آرکیٹیکٹس کے خدمات دی جائیں گی. ہم اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں شعیب مختار سے. شعیب بتائیے گا. جی بالکل، ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عبدالرشید سولنگی کی زیر صدارت جو ہے اہم اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں چیئرمین آباد آصف سمسم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سمیت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران بھی جو ہے موجود تھے. حکومت سندھ کے احکامات پر SBCA نے FTC بلڈنگ سے ایئرپورٹ تک عمارتوں کی بیرونی تزئین و آرائش کرنے کا جو ہے فیصلہ کر لیا ہے. عمارتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے آرکیٹیکٹ کے لیے خدمات جو ہے وہ حاصل بھی کی جائیں گی. DG SBCA کا کہنا ہے کہ شارع فیصل پر بلڈنگز کی بیوٹیفیکیشن کا کام جو ہے جلد شروع کیا جائے گا، جبکہ پروجیکٹ کی تکمیل میں ضلع انتظامیہ ڈسٹرکٹ ایسٹ تعاون فراہم کرے گی. DG SBCA عبدالرشید سولنگی کا مزید کہنا ہے کہ بیرونی تزئین و آرائش کا کام ایئرپورٹ کا FTC بلڈنگ کے درمیان تمام رہائشی و کمرشل بلڈنگ پر کیا جائے گا. بیوٹیفیکیشن کے کام میں بیرونی عمارت، رنگ و روغن، لائٹنگ، صفائی ستھرائی سمیت روڈ کے دونوں طرف جو ہے شجرکاری بھی کی جائے گی، جبکہ عمارتوں کے سامنے صفائی ستھرائی، شاہراہ کے درمیان گرین بیلٹ کی تزئین و آرائش، درخت و پودے بھی جو ہے لگائے جائیں گے. اجلاس کے بعد جو ہے ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عبدالرشید سولنگی نے شارع فیصل کا جو ہے تفصیلی دورہ بھی کیا ہے. آباد کے وقت سمیت تمام متعلقہ اداروں کے افسران بھی DG SBCA کے ہمراہ جو ہے موجود تھے. ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ضب و حالی کا شکار متعدد عمارتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو فوری طور پر نوٹس جاری کرنے کے احکامات بھی متعلقہ حکام کو دیے ہیں. DG SBCA کا کہنا ہے کہ شارع فیصل ملکی امیج میں خصوصی اہمیت کی حامل ہے. صاف ستھری خوبصورت تعمیرات مہذب قوم کے بارے میں سفارتی، تجارتی و سیاحتی مہمانوں پر اولین تاثر جو ہے قائم کرتی ہے. خوشنما و بدنما تعمیرات ملک کا پہلا امیج ہوتی ہیں جو شہریوں کے مزاج، تہذیب و تمدن کی عکاسی کرتی ہیں. جی بہت شکریہ شعیب مختار. بڑے شہر کے بڑے مسائل. روشنیوں کے شہر کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی جان نہ چھوٹ سکی تو وہیں بھاری بھرکم بلوں نے بھی شہریوں کے ہوش اڑا دیے. تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ. بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نجات کو شہری ترس گئے. کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کے معاملات زندگی کو نہ صرف درہم برہم کر کے رکھا ہوا ہے بلکہ مہنگی بجلی کی وجہ سے معاشی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں. شہری کہتے ہیں دن میں کئی گھنٹوں کے لیے بجلی غائب رہتی ہے جبکہ رات میں بھی لوڈ شیڈنگ سکون چھین لیتی ہے. بجلی کے تعطل سے پانی، نایاب اور دیگر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے بلوں کی ادائیگی کی سکت اب باقی نہیں رہ سکی. 2 گھنٹے لیٹ ہوتا ہے تو 4 گھنٹے لیٹ نہیں ہوتا ہے. رات کو لیٹ جاتا ہے. اتنی گرمی ہے، اتنی پریشانی ہے. ہمیں ساری عوام پریشان ہے. مطلب کہ بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. جب ان کے بجلی کے بل آتے ہیں مہینے بار تو 7-7 8-8 ہزار بل آتے ہیں. اتنی یہ بجلی نہیں دیتے جتنے ہمیں بل بھرنا پڑتے ہیں. تو پورا دن یہاں پہ کام کرتے ہیں. جب 2 منٹ رش نہیں ہوتی بولتے ہیں 2 منٹ آرام کر لیں تو بجلی نہیں ہوتی. اس لیے بندہ جو ہے پریشان ہو گئے ہیں شہری بہت. گھگر پاٹک، میمن گوٹ، کورنگی، اورنگی ٹاؤن، فقیر کالونی، ملیر اور اولڈ سٹی ایریا سمیت مختلف علاقے بجلی کے مسائل سے متاثر ہیں. شہر میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 6 سے 10 گھنٹے ہے. ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی. بجلی چوری والے علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے. کیمرہ مین حیدر رضا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21. سمندر کنارے بسنے والے بھی پانی کو ترسنے لگے. عزیز آباد، محمدی کالونی اور گلشن شمی میں 20 روز سے پانی کی بندش. اہل علاقہ سڑکوں پر نکل آئے. واٹر کارپوریشن کے خلاف احتجاج. مظاہرین نے یاسین آباد روڈ سے گلشن اقبال اور عائشہ منزل جانے والی سڑک بلاک کر رکھی ہے. مظاہرین نے ٹریفک جام میں پھنسے 3 واٹر ٹینکرز کا پانی سڑک پر بہا دیا. پولیس اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کامیاب. یاسین آباد کی مرکزی شاہراہ ٹریفک کے لیے بھی کھول دی گئی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نعمان گل سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، کراچی کے علاقے عزیز آباد، گلشن شمیم اور گردنواں میں جو ہے وہ پانی کی شدید قلت تھی جس کے باعث جو علاقہ مکین تھے وہ سڑکوں پر نکل آئے. واٹر کارپوریشن کے خلاف جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوئے. یاسین آباد سے گلشن اقبال جانے والی سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا جبکہ علاقے اس میں
गुज़िश्ता 20 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल होने पर ये इलाका मकीन जो है वो सड़कों पर निकले हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक घरों में पानी आने नहीं आ रहा है, जबकि टैंकर से जो है वो पानी जो है वो पानी की तरसील को यकीनी बना रहे हैं। मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो शाहराह के दोनों ट्रैक को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि जिसके बाद पुलिस जो है वो मुजाहिरीन के पास पहुंची और उसके बाद मुजाहिरीन और जो पुलिस है उसके दरमियान मुज़ाकरात है और उसके बाद जो पुलिस की यकीन दहानी पर जो है वो मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया और इस वक्त शाहराह के दोनों ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया नुमान कुल। शहर कायद में एक के बाद एक मसाइल, शहरों की मुंतज़िर पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सजानी टाउन सेक्टर 87 में इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। सुलजानी टाउन सेक्टर 7C में पानी की शदीद किल्लत, इलाका मकीनों की जिंदगी मसाइल के भंवर का शिकार हो गई। इलाका मकीन कहते हैं साफ पानी, पीने का पानी और घर की जरूरत के लिए पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। वाटर बोर्ड के दफातर में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आमदनी का बड़ा हिस्सा पानी के अखराजात की नजर हो जाता है। अभी मौजूदा जितनी गर्मी पड़ रही है उसके हिसाब से यहाँ पानी नहीं है। हम मजबूर हैं कि 8-8 गैलन हम पानी परचेज़ करके लाते हैं, जो बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है, हमारे पीने के लिए भी। आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो मेरे ख्याल से हम पानी में दे देते हैं। 25 से 30 रुपए का गेन हो गया बस ये, और ये 2 गेन रोज़ के, तो मतलब इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि आमदनी का आधा हिस्सा किधर जा रहा है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि पानी के मसाइल को हल करके मुश्किलात को कम किया जाए। कैमरामैन शकील खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम सफ़र कहते हैं कि बजट में ज़रूरी टैक्स नहीं लगाया गया। पंजाब और सिंध के जागीरदारों को टैक्स में सहूलत फराहम की गई है। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, लेकिन नालों की सफाई ताहाल मुकम्मल नहीं की जा सकी। तफसीलात ताहा मलिक की रिपोर्ट। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना था कि शहरियों को बिजली की लोड शेडिंग से छुटकारा मिलना चाहिए। कल बिजली के मसाइल के खिलाफ औरंगी टाउन में धरना देंगे। हमारा मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। बिजली के इन मसाइल पर और महंगाई के मौजू पर इंशाअल्लाह ताला धरना होगा, और ये धरने का आगाज़ है 12 जुलाई को। कराची के ताजिर बरादरी ने इस धरने की हिमायत का ऐलान किया है, और इंशाअल्लाह ताला ये धरना ये रुख मुतय्यन करेगा, ये हुक्मरानों को मजबूर करेगा कि वो आवाम पर जुल्म बंद करें। मुनीम जफर ने कहा कि शहर में अर्बन फ्लोडिंग का खतरा है। कब्जा मेयर शहर में नालों की सफाई कराएं। टाउन अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। KMC कहीं नजर नहीं आ रही। कब्जा मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब इस काम को अंजाम दें कि शहर कराची के नालों की सफाई के अमल को तेज़ किया जाए। आपने अगर कुछ काम शुरू भी किया है तो कैफियत ये है कि वो पूरी मशीनरी मौजूद नहीं है कि जिसके नतीजे में ये काम हो सके, और पूरे शहर के जितने भी हमारे KMC के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि 12 जुलाई को इस्लामाबाद में महंगाई और बिजली के मसले पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। आवाम के मफाद में हर फॉर्म पर आवाज़ उठाएंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद के जमात इस्लामी कराची पर जवाबी वार। कहती हैं जमात इस्लामी की सिंध हुकूमत पर तनकीद आसमान की तरफ थूकने के मुतरादिफ है। जमात इस्लामी का अगले इलेक्शन में नारा हल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का होगा। जमात इस्लामी क़यादत कराची अपने टाउन नाज़मीन की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर एहतसाब करे। कराची के 9 टाउन्स में जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन सिर्फ सरकारी बजट हड़प करने में फ़ाल हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए फ़नून, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सेमेस्टर ब्रेक का ऐलान कर दिया। सेमेस्टर ब्रेक का इतलाक़ 15 जुलाई से होगा। यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल 20 अगस्त से तक मुअत्तल रहेगी। आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल 20 अगस्त तक मुअत्तल रहेगा। सेमेस्टर ब्रेक का इतलाक़ 15 जुलाई से होगा। अपने नासिम को बताएं कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए फ़नून लतीफ़ा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सेमेस्टर ब्रेक का ऐलान कर दिया है। इसी वाले से तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी अपडेट कीजिएगा।
आज बिल्कुल देखिए वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए फनून साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सेमेस्टर ब्रेक का ऐलान कर दिया है। शुक्ल जामिया डॉक्टर ज़ाब्ता खान शिनवारी की मंजूरी से कायम मकाम रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उर्दू यूनिवर्सिटी का अब्दुल हक और गुलशन कैंपस में तदरीस अमल मौसल रहेगा। उर्दू यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर ब्रेक का इतलाक 15 जुलाई से होगा, जबकि सेमेस्टर ब्रेक के बाद यूनिवर्सिटी में तदरीस अमल 20 अगस्त तक मौसल रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान रेलवेज का 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। 22 मुसाफिर ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। कराक्रम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस शामिल है। क्वेटा से कराची चलने वाली वाहिद मुसाफिर ट्रेन बोलान मिल को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। बड़ी तादाद में ट्रेनों के निजकारे का फैसला किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी के ऑडिट का मामला। ट्रांसपोर्ट कैनेडा का सिक्योरिटी वफ्द 14 जुलाई को कराची पहुंचेगा। वफ्द पाकिस्तान से बराह रास्त कैनेडा जाने वाली परवासों की मुकम्मल जांच करेगा। सिविल एविएशन के ज़राए के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ एविएशन सिक्योरिटी के शोबों की जांच पड़ताल होगी। मुसाफिरों, सामान की स्क्रीनिंग, कार्गो और कैटरिंग सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। वफ्द टीम सिक्योरिटी, एक्सेस, रसाई कंट्रोल, हवाई जहाज़ की सिक्योरिटी जबकि दीगर मुतल्लिका तरीक़ाकार की भी जाँच पड़ताल करेगी। सिविल एविएशन और दीगर मुतल्लिका इदारे कैनेडियन वफ्द को मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी देंगे। खुश्क दूध भी आवाम की पहुंच से दूर। 18% सेल टैक्स के नफाज से खुश्क दूध 200 रुपये किलो महंगा। दुकानदारों ने वजह सेल टैक्स को करार दे दिया। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन की रिपोर्ट में। बजट में टैक्सेस का इजाफा, शहरियों पर महंगाई के बम गिरने लगे। टेट्रा पैक के बाद खुश्क दूध की कीमत को भी पड़ लग गए। खुश्क दूध 200 रुपए किलो महंगा। दुकानदारों का कहना है कि खुश्क दूध 1200 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए किलो पर पहुंच गया। सेल्स टैक्स पर हुकूमत ने नजरसानी ना की तो मजीद महंगाई आएगी। जो चीज़ खुली मार्केट में पैकेट वाली 1200 रुपये के जी बिकती थी, उसमें 1 के जी पे 200 रुपये के जी का इजाफा हुआ है। मतलब जो 25 के जी के बैग आते थे हमारे, इन पे तकरीबन जो पाकिस्तानी प्रोडक्शन वाला माल था उस पर 6-7 हज़ार रुपये बढ़ा है, और जो इम्पोर्टेड आइटम था उस पर 8-9 हज़ार रुपये बढ़ा है। सूरत हाल पर शहरी भी फट पड़े। बोले हुकूमत गुर्बत खत्म करने के लिए गरीब को मारना चाहती है। गैस, बिजली के बाद खाने पीने की अशिया भी महंगी हो रही हैं। हुकूमत ने तो सोचा है कि गुर्बत को ख़त्म करना है, तो गुर्बत कैसे होगी? जब गरीब मर जाएंगे तो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, ये भी रेट बढ़ चुके। अभी जो 1300 रुपये 1200 रुपये किलो था, अभी वो 1300 रुपये किलो हो गए। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत पैकेट वाली अशिया पर सेल्स टैक्स खत्म करे ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सूई सदर गैस मसाइल हल करने में नाकाम। गैस का हसूल शहरियों के लिए इम्तहान बन गया। गैस मसाइल से कोरंगी, जुमा गोट, मकीन आजिज आ गए हैं। इसी वाले से तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। कराची वालों की गैस मसाइल से जान ना छूट सकी। कोरंगी, जुम्मा गोट के मकीन गैस मसाइल पर फट पड़े। कहते हैं रात से सुबह तक 8 घंटों के लिए गैस गायब रहती है। दिन में भी गैस प्रेशर में कमी और तातुल का सामना होता है। LPG सिलेंडर और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं सर, चूल्हा बनाना पड़ता है, फिर उस पर पकाओ, फिर या तो होटल से लाओ या ये करना पड़ता है सर। हम लोग को तो गैस तो वैसा भी नहीं मिल रहा है। हम कहते हैं गैस नहीं मिले तो अच्छा है, मगर पानी तो मिले। जुम्मा गोट, चनेसर गोट, कोरंगी और रंगी टाउन, लाइन्स एरिया समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासिर हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।